मिडिल ईस्ट में जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर हमला करना खत्म कर देगा। ट्रंप ने कहा कि उनका टारगेट ईरान के परमाणु हथियार थे और अब ईरान के परमाणु हथियार नहीं रहेंगे। ट्रंप ने बातचीत की गुंजाइश को खुला रखते हुए कहा कि अभी आने वाले कुछ दिनों में अमेरिका ईरान पर बड़े हमले करेगा, लेकिन अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार हो जाता है तो ये हमले रुक सकते हैं। Pardon me for interrupting. The U.S. will be gone or done with the war in 2 I or 3 think we're weeks? 2 or 3 weeks. Not 3 weeks. If it is 3 We'll leave weeks, because then it there's would no be reason for us to do this. definitely. Look, problem with the Strait, a guy can take a mine, drop it in the water, and say, "Oh, it's unsafe." It's not like you're taking out an army or you're taking out a country, or they can drop it, or you can take a machine gun from the shore and shoot a few bullets at a ship, or maybe an over-the-shoulder missile, small missiles. That's not for us. That'll be for France. That'll be for whoever's using the Strait. But I think when we leave, probably that's all cleared up. Today I heard tremendous numbers of ships were sailing through. We're negotiating with them right now. They've been, again, we have had regime change. Now, regime change was not one of the things I had as a goal. I had one goal. They will have no nuclear weapon. And that goal has been attained. They will not have nuclear weapons. But we're finishing the job. And I think within maybe 2 weeks, maybe a couple of days longer to do the job. But we want to knock out every single thing they have. Now, it's possible that we'll make a deal before that, because we'll hit bridges, and we've hit some. We'll hit some bridges. We've got a couple of nice bridges in mind. But if they come to the table, that'll be good. But it doesn't matter whether they come or not. We've set them back. It'll take 15 to 20 years for them to rebuild. डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी बयान दिया। ट्रंप ने हॉर्मुज की सुरक्षा से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि स्ट्रेट की सुरक्षा से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। ट्रंप ने यूरोपीय देशों से कहा कि वो अपने जहाजों की रक्षा खुद करें। ट्रंप ने तंज कसते हुए कहा कि फ्रांस अगर चाहे तो खुद हॉर्मुज जाए और अपने जहाज वहां से निकाल लाए। I think that the people understand it. We'll be leaving very soon, and if France or some other country wants to get oil or gas, go up through the Strait and Hormuz Strait. They'll go right up there and they'll be able to fend for themselves. I think it'll be very safe, actually, but we have nothing to do with that. What happens to the Strait, we're not going to have anything to do with, because these countries, China will go up and they'll fuel up their beautiful ships and they'll leave and they'll take care of themselves. There's no reason for us to do it. We hit them hard. We got rid of a lot of the radicalized lunatics along the Strait. But if they want something, but I would say that within 2 weeks, maybe 3, we're hitting them very hard. Last night we knocked out tremendous amounts of missile-making facilities. As you probably read or wrote. आज की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने अब जंग का दायरा और बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। IRGC ने अमेरिकी टेक कंपनीज को चेतावनी दी है कि वो मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल की मदद करना बंद कर दें, वरना उनके दफ्तरों और कर्मचारियों पर हमला किया जाएगा। IRGC ने 18 कंपनियों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, मेटा, टेस्ला और इंटेल जैसी कंपनियां शामिल हैं। ईरान ने इन सभी कंपनियों को आज रात 8 बजे तक का वक्त दिया है, यानी भारतीय वक्त के मुताबिक आज रात 10:30 बजे ईरान इन अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाना शुरू कर सकता है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो अपनी कंपनियों की सुरक्षा करने में सक्षम है। ईरान के टारगेट पर अरब में अमेरिकी कंपनी। ईरान का नया टारगेट, अमेरिकी टेक कंपनियों को अल्टीमेटम। अरब में अब कोई पावरफुल देश नहीं बचा जो ईरान के मिसाइल, ड्रोन या रॉकेट की जद में ना हो। सऊदी अरब में अमेरिकी बेस को उड़ाया तो कतर का वाटर प्लांट बर्बाद कर दिया। कुवैत के लिए ईरानी मिसाइल रोकना मुश्किल हो गया है तो बहरीन में
रिफाइनरी निशाने पर है। इराक में तो अमेरिकियों पर इस कदर हमले हुए कि उन्हें बेस छोड़ना पड़ गया। ये सारे हमले ईरान ने किए और अमेरिका के लिए इन मिसाइल्स और ड्रोन को रोकना मुश्किल हो गया। ईरान की मिसाइलों ने कुवैत के बेस का क्या हाल किया, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। बगदाद में अमेरिका का विक्ट्री बेस कई घंटों तक धधकता रहा। इन हमलों के बाद अब ईरान ने लड़ाई का नया मोर्चा खोल दिया है। IRGC ने 18 अमेरिकी कंपनियों की लिस्ट जारी की है। एप्पल, गूगल, मेटा, एनवीडिया, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल जैसी कंपनियों के नाम इस लिस्ट में हैं। आज 1 अप्रैल को ईरानी समय के मुताबिक रात 8 बजे से हमला शुरू होगा। इन कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को चेतावनी दी गई है कि वो तुरंत अपना ऑफिस छोड़ दें। ईरान ने मंगलवार को पहली बार अपने अंडरग्राउंड बेस का वीडियो जारी किया है। दावा है कि ये बेस जमीन से कई सौ मीटर नीचे है और अमेरिका के बंकर बस्टर बम का इस पर कोई असर नहीं होगा। दावा है कि इस बेस में किसी भी तरह के फाइटर जेट को रखा जा सकता है। इसकी लोकेशन की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन IRGC का कहना है कि दुश्मन को खत्म करने के लिए ऐसे कई बेस ईरान के पास हैं। इस बेस पर पुराने रूसी विमान हैं। चीनी फाइटर जेट भी बेस पर देखे गए हैं। साथ ही F4 और F5 अमेरिकी जेट्स भी इस बेस पर रखी गई फ्लीट का हिस्सा हैं। इसी के दम पर ईरान का दावा है कि वो अमेरिका और इजराइल के हर एक्शन का मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। ये धमकी अमेरिकी राष्ट्रपति के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने ईरान के एनर्जी ठिकानों को बर्बाद करने की बात कही है। چنین محاسبات اشتباهی حضور بی‌سابقه مردم بصیر و انقلابی در خیابان‌ها و اقتدار و ایستادگی معجزه‌گون نیروهای مسلح در میدان نبرد را برای دشمن غیر قابل پیش‌بینی نموده است. این خطای راهبردی دشمنان آمریکایی و صهیونیستی ایران اسلامی آنها را تحقیر و در مسیر نابودی قرار داده است. آنها با خیالات و توهم فکر می‌کنند با جنگ تبلیغاتی و نمایش سلاح‌ها و تجهیزات به ظاهر پیشرفته نظامی و ترور کودکان، زنان، مردان، دانشمندان و فرماندهان شجاع نیروهای مسلح کشور خواهند توانست ایران مقتدر و سربلندی را که در طول تاریخ در برابر دشمنان خود سر فرود نیاورده است را تسلیم نمایند. ईरान ने यह धमकी ही जारी नहीं की, बल्कि इस्लामिक रिपब्लिक डे पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन खुद पब्लिक के बीच सड़कों पर दिखे। विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची भी समारोह में शामिल हुए। पहले उन्होंने सिर ढक रखा था, लेकिन जब इंटरव्यू देने की बारी आई तो उन्होंने चेहरा दिखाने से परहेज नहीं किया। युद्ध के बीच मीडिया के सामने इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू भी आए। उन्होंने कहा कि ईरान अभी भी खतरा बना हुआ है। ये दावा भी कर दिया कि ईरान अब इजराइल के अस्तित्व को खतरा नहीं पहुंचा सकता। שברנו את כוחם של צבאות הטרור של איראן שהקיפו אותנו בטבעת חנק. זה נכון, יש להם עדיין יכולת שיורית לאיים עלינו, אבל הם כבר אינם יכולים לאיים על קיומנו, לשגר רבבות טילים בליסטיים ורקטות שנועדו להחריב את ערי ישראל. ईरान लगातार इजराइल को निशाना बनाकर हमला कर रहा है। हाइफा से लेकर तेल अवीव तक लगातार मिसाइल का निशाना बन रहे हैं। ऐसे में नेतन्याहू का राष्ट्र के नाम संबोधन ये बताने के लिए था कि उनकी फौज और गठबंधन लड़ाई में पीछे नहीं है। לפני המבצעים נלחמנו לבד נגד איראן. היום אנחנו נלחמים כתף אל כתף עם ארצות הברית, בשיתוף פעולה היסטורי חסר תקדים בין הנשיא טראמפ לביני ובין צבא ארצות הברית וצבא הגנה לישראל. לא רק שחיזקנו את הברית עם ארצות הברית, אנחנו גם יוצרים בריתות חדשות עם מדינות חשובות באזור נגד האיום האיראני המשותף, ואני מקווה שבקרוב, אזרחי ישראל, אני אוכל לספר לכם יותר על הבריתות החשובות האלה. ये भी सच है कि नेतन्याहू नए गठबंधन की उम्मीद उस वक्त जगा रहे हैं जब यूरोप के कई देश साफ कर चुके हैं कि वो इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। मिडिल ईस्ट में जारी जंग का 5वां हफ्ता चल रहा है, लेकिन ये जंग कहां पर जाकर रुकेगी कोई नहीं जानता। अमेरिका लगातार ईरान के साथ बातचीत फाइनल होने का दावा भी कर रहा है। ट्रंप ने तो अब जंग खत्म होने की तारीख भी बता दी है, लेकिन ईरान अमेरिका के हर एक दावे को खारिज कर रहा है। इस बीच अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान पर हमले तेज कर दिए हैं।
इसराइल ने भी तेहरान में ईरान की एक एंटी एयरक्राफ्ट गन साइट को तबाह कर दिया। ईरान का भी पलटवार जारी है। ईरान खाड़ी देशों के साथ साथ इसराइल पर भी लगातार हमले कर रहा है। इसराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर जोरदार हमला किया। इस हमले के बाद बेरूत में भीषण धमाके हुए। धमाकों के बाद बड़े इलाके में आग लग गई। हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच जारी जंग में अब तक बेरूत को भारी नुकसान हुआ है। बेरूत की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर इसराइल ने बड़ा हमला किया और एक बड़े इलाके में धमाकों की आवाज़ सुनाई दी और उसके बाद पूरे इलाके में आग लग गई। इसराइल ने साउथ लेबनान पर भी भीषण हमला किया। इस हमले का वीडियो भी सामने आया, जिसमें बेरूत के दक्षिणी इलाकों में एक इमारत इजरायली हमले में तबाह होती दिख रही है और पूरी इमारत धुआं धुआं हो जाती। बताया जा रहा है कि इसराइल ने इमारत पर हमले से पहले अलर्ट भी जारी किया। इस हमले में इमारत पूरी तरह से तबाह हो गई। लेबनान में पिछले 24 घंटे में 21 लोगों की मौत हुई है, जबकि 70 लोग जख्मी हुए हैं। ईरान ने एक बार फिर से कुवैत पर मिसाइलें दागी। इस हमले में कुवैत को भारी नुकसान होने की खबर है। ईरान ने दावा किया कि कुवैत के पास इन मिसाइलों को रोकने की ताकत तो है, लेकिन फिर भी उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कुवैत पर यह हमला किया, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, और बताया जा रहा है कि ईरान के इस हमले से कुवैत में भारी नुकसान हुआ है। ईरानी हमलों के बाद कुवैत में अमेरिकी सेना के बेस कैंप बिहुरिंग में बड़ा नुकसान हुआ है। बेस कैंप की सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं। इनमें साफ दिखाई दे रहा है कि बेस कैंप को ईरान की मिसाइलों ने बड़ा नुकसान पहुंचाया। बेस पर मौजूद कई विमान, हैंगर, बैरक, जिम, गोदाम, पावर स्टेशन बुरी तरह से तबाह हो चुके हैं। ये बेस कैंप की सैटेलाइट इमेजेस आप देख रहे हैं और इस पर हुआ नुकसान दिखाई दे रहा है। अमेरिका ने ईरान पर जवाबी हमला किया। अमेरिका ने तेहरान पर एक बार फिर से हमले तेज कर दिए हैं। अमेरिकी फोर्सेज ने हवाई हमला किया, जिसके बाद तेहरान के कई इलाकों से धुएं का गुबार और आग की लपटें देखी गई। अमेरिका का दावा है कि वो अब तक ईरान में हजारों सैन्य ठिकानों को तबाह कर चुका है। वहीं हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल और हाइफा पर हमला किया। हिजबुल्लाह ने 20 से ज्यादा रॉकेट दागे। इसके बाद हाइफा, खाड़ी और गैलील में सायरन बजने लगे। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह के इस हमले को इजराइल ने इंटरसेप्ट करके नाकाम कर दिया। तो हिजबुल्लाह की तरफ से जो रॉकेट दागे गए, इजराइल का दावा है कि उसने उन सारे रॉकेट्स को इंटरसेप्ट कर लिया है। एक और बड़ी खबर, ईरान मिडिल ईस्ट के देशों और इजराइल पर लगातार हमला कर रहा है। ईरानी फोर्सेस अमेरिकी ठिकानों को भी चुन चुनकर निशाना बना रही हैं। इस बीच IRGC एरोस्पेस बलों ने कमांडर जनरल सैयद माजिद मुसावी ने सोमवार को एक दौरा किया, जिसका वीडियो सामने आया है। इस वीडियो को दिखाने के पीछे ईरान का इरादा साफ है कि उसके पास अभी भी मिसाइलों का जखीरा है। एक स्टोरेज का दौरा किया है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ईरान पर इजराइल के हमले जारी हैं। इजराइल ने तेहरान में एक हाई राइज बिल्डिंग की छत पर लगी ZU-23-2 एंटी एयरक्राफ्ट गन को तबाह कर दिया। इजराइल ने एंटी एयरक्राफ्ट गन साइट पर हमला किया। इस हमले में एंटी एयरक्राफ्ट गन साइट पूरी तरह से बर्बाद हो गई। हमले का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें हमले के बाद लोग इमारत के किनारे लटके हुए दिख रहे हैं। इजराइल का दावा है कि पिछले 24 घंटे में उसने ईरान पर 230 से ज्यादा बार हमले किए हैं। अमेरिका और इजराइल के हमले में एक मस्जिद को बड़ा नुकसान हुआ। इस हमले में 3 लोगों की मौत हुई है। ये हमला जंजन इलाके में हुआ। इस हमले में मस्जिद पूरी तरह से तबाह हो गई है। हमले की वजह से मस्जिद में आग लग गई। मस्जिद के अंदर रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। مکانی مقدس میعادگاه عاشقان ابا عبدالله الحسین این بار به کین یزیدیان دچار شد. به صبح بود اولین پرتابه اومد.
मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच आज ईरान अपना गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस मौके पर तेहरान की सड़कों पर भारी भीड़ है। लाखों लोग गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहे हैं। हाथों में ईरान का झंडा है। आयतुल्लाह खामनेई की यादें हैं। 1979 की ईरानी क्रांति के बाद आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में एक नई सरकार वजूद में आई। एक नए संविधान के साथ इस्लामिक गणराज्य की स्थापना हुई। ये दिन 2500 साल पुरानी ईरानी राजशाही के अंत का प्रतीक है। इस मौके पर ईरानी राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन ने इस्लामिक गणराज्य के राष्ट्रीय दिवस की पूर्व संध्या पर तेहरान में एक सभा में हिस्सा लिया। इस दौरान विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची भी लोगों के बीच मौजूद थे। अब्बास अराक्ची ने इस्लामिक गणराज्य के समर्थकों की एक रैली में हिस्सा लिया। शुरुआत में वो सिर ढके हुए थे, लेकिन फिर इंटरव्यू देने से पहले उन्होंने अपनी हुडी हटाई और चेहरा दिखाया। इस दौरान अराक्ची ने कहा कि वो अपना मनोबल बढ़ाने के लिए लोगों के बीच आए हैं। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटके पे झटका लग रहा है। ट्रंप यूरोपीय देशों और अपने मित्र देशों से मदद के लिए छटपटा रहे हैं, लेकिन एक एक करके बारी बारी से सभी देश ट्रंप को झटका दे रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप को सबसे लेटेस्ट शॉक फ्रांस की तरफ से मिला। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फ्रांस पर आरोप लगाया है कि उसने अमेरिका के सैन्य विमानों को अपने हवाई क्षेत्र से गुजरने की इजाजत नहीं दी। ये विमान इजराइल के लिए सैन्य सामान लेकर जा रहे थे। एक दिन पहले ही स्पेन ने ईरान युद्ध में शामिल अमेरिकी लाखों विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था। वहीं इटली ने भी अमेरिका को करारा झटका दिया है। इटली ने अमेरिकी सैन्य विमानों को मध्य पूर्व जाने से पहले सिसिली के सिगोनेला एयरबेस पर उतरने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। यह फैसला ऐसे वक्त में आया जब पश्चिम एशिया में युद्ध को लेकर वैश्विक तनाव बढ़ा हुआ है। वहीं अमेरिका ने पोलैंड से उसकी पैट्रियट मिसाइल की बैटरियां मिडिल ईस्ट भेजने के लिए कहा है, लेकिन पोलैंड ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग की वजह से दुनिया भर में जारी तेल की किल्लत पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को धमकाया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा कि ब्रिटेन जैसे देश जो हॉर्मुज स्ट्रेट से फ्यूल नहीं ले पा रहे, उन्हें अमेरिका से तेल खरीदना चाहिए क्योंकि अमेरिका के पास पर्याप्त तेल है। वहीं ईरान को लेकर ट्रंप ने कहा कि ईरान काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुका है और अब देशों को अपना तेल खुद हासिल करना चाहिए। ट्रंप ने यूरोपीय देशों से कहा कि ये देश हिम्मत दिखाएं, हॉर्मुज तक जाएं और तेल खरीद लें। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा कि अब देशों को खुद अपनी लड़ाई लड़ना सीखना होगा। अमेरिका उनकी मदद के लिए नहीं आएगा। वैसे वो अमेरिका की मदद के लिए नहीं आए थे। तो एक बार फिर से यूरोपीय देशों को धमकाया है ट्रंप ने। इस बीच जारी जंग के दौरान रूस ने दुनिया के कई देशों को बड़ा झटका दिया। रूस ने आज से 31 जुलाई तक पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। रूस के मुताबिक ये कदम वैश्विक बाजार की अस्थिरता, रिफाइनरीज पर खतरे और देश में पेट्रोल की संभावित किल्लत से बचने के लिए उठाया ताकि घरेलू कीमतें पूरी तरह से काबू में रखी जा सकें। रूस रोजाना 1.2 से 1.7 लाख बैरल पेट्रोल निर्यात करता है। रूस के इस फैसले का चीन, तुर्की, ब्राजील, अफ्रीका और सिंगापुर जैसे देशों पर असर पड़ेगा क्योंकि ये देश रूस से सीधे पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं। ये पहली बार नहीं है जब रूस ने अपने तेल के निर्यात पर इस तरह की पाबंदी लगाई है। देश में बढ़ती ईंधन की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए किसी भी संभावित कमी से निपटने के लिए सरकार पहले भी इस तरह से पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा चुकी है। इस फैसले को लेकर रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने कहा कि इजराइल ईरान जंग की वजह से ग्लोबल तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्शन बाजार में अस्थिरता बढ़ी है। इससे कीमतों में उतार चढ़ाव हो रहा है। राष्ट्रपति पुतिन ईंधन की कीमतों को काबू में रखना चाहते हैं और इसीलिए सरकार ने यह फैसला किया है। रूस के इस फैसले का भारत पर भी सीधा असर नहीं होगा क्योंकि भारत रूस से तैयार पेट्रोल नहीं बल्कि कच्चा तेल खरीदता है। भारत अपनी जरूरत का करीब 80% कच्चा तेल आयात करता है, क्रूड मंगाता है, जिससे लगभग 20% रूस से, इसमें से 20% हिस्सा रूस से मंगाया जाता है
और इसको हम अपने यहाँ पेट्रोल बनाते हैं। इसके बजाय अब देश के रिफाइनरी नेटवर्क के जरिए कच्चे तेल को खुद हम प्रोसेस करते हैं। यही वजह है कि रूस के पेट्रोल निर्यात पर लगी रोक का भारत पर कोई असर पड़ने की संभावना बहुत कम है। भारत रोजाना करीब 56 लाख बैरल कच्चा तेल रिफाइन करता है। ये न सिर्फ अपनी घरेलू ज़रूरत पूरी करता है बल्कि तैयार ईंधन का निर्यात भी हमारे यहाँ से किया जाता है, यानी हम खुद पेट्रोल एक्सपोर्ट करते हैं।